Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is the last lecture of chapter number 1, stoichiometry, and we are discussing in the previous lecture we have discussed about the limiting reactant, and there is one part remaining in the limiting reactant, and that's exist reactant. If you remember, we have discussed that limiting reactant is a reactant which produces least number of moles, and then we have excess reactant also, that when two reactants are reacting, so definitely one species in limiting amount and one left behind. Fine. So we have to calculate excess reactant amount also. So we are going to, it's a bit छोटा सा एक फार्मूला होता है, छोटा सा तो नहीं है, like it's a very simple formula, a simple method actually, by the way we calculate excess reactant. And after that we are going to start with the main topic, and main topic is percentage yield, and again it is a very simple process. The steps which we are following from the day one, calculation of moles and then mole ratio and amount of जो भी आपको desired quantity है उसका amount पूछा जा रहा होता है, तो we just calculated. So that's about today's lecture. Fine. So today we are going to start with the first part, and that's it is a sample problem which I am sharing with you, and it's from your book, and sample problem number 1.8. okay. In this example, if you see, let me change the position of this marker and okay, recorder. Okay, so we have suppose 1.87 moles of ammonium chloride were reacted with 1.35 moles of calcium hydroxide. What is the formula of ammonium chloride? Is NH4Cl, and calcium hydroxide is CaOH whole twice, and they are forming this one and this one. Okay, how and what they are asking? They are asking how many grams of calcium hydroxide are left unreacted. They are asking about the grams of calcium hydroxide left unreacted. If you read this question carefully, they are asking, suppose 1.87 moles of ammonium chloride were reacted with. These are the two reactants, and they are reacting with each other, and that's our limiting reactant. And it is shown कि आपको समझ में आ रहा है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर लेफ्ट अनरिएक्टेड. तो मतलब एग्जिस्ट रिएक्टेंट आपका ये एग्जिस्ट रिएक्टेंट अगर आपका ये होगा तो ये आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा. बट राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट लिमिटिंग रिएक्टेंट. दे आर आस्किंग अस अबाउट हाउ मेनी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर लेफ्ट अनरिएक्टेड. अनरिएक्टेड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना रहेगा. अच्छा, इन दिस क्वेश्चन दे आर गिविंग अस, दे आर नॉट गिविंग अस मास इन ग्राम, दे आर इन फैक्ट इंस्टेड ऑफ दिस दे आर डायरेक्टली गिविंग अस मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड. दे आर सेइंग कि स्टार्टिंग में आपके पास इसके मोल्स इतने हैं एंड इसके मोल्स इतने हैं, और कुछ आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो रिमेनिंग रह गया है. तो अगर हमें पता हो, अच्छा हमें करना क्या है अब, बिकॉज वी आर गोइंग टू फाइंड द मोल्स फॉर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सो इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपसे कहा है कि जो चीज़ मालूम करनी होती है वी जस्ट पुट ऑन द राइट हैंड साइड, एंड द स्पीशी और द रिएक्टेंट विच इज़ गिवन इट वी विल पुट इन द लेफ्ट हैंड साइड. वॉट वी नीड एक्चुअली, वी नीड द मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्चुअली. सो हम लोग उसके हिसाब से सारी कैलकुलेशन करेंगे. तो सबसे पहले तो ये चीज़ देख लीजिए कि आपका जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो अमोनियम क्लोराइड था, तो उसके कुछ मोल्स ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया होगा. तो सबसे पहले तो हमें वो अमाउंट निकालनी है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने रिएक्ट कर लिया है, जो यूटिलाइज हो चुका है, हमें वो अमाउंट चाहिए. सो फॉर दैट पर्पज़ वी नीड स्टैंडर्ड रिलेशनशिप, एंड स्टैंडर्ड रिलेशनशिप वी नीड, इट इज़ फ्रॉम द इक्वेशन 2 moles of ammonium chloride will react with 1 mole of calcium hydroxide. So what are the moles given for ammonium chloride? They are 1.87. we will calculate in for 1.87, and the answer is 0.935 moles of calcium hydroxide were reacting with वॉट अमोनियम क्लोराइड. फाइन, दीज आर द मोल्स. सो ये हमारे पास मोल्स आ गए, इतनों ने रिएक्ट किया है. अच्छा, इतने मोल्स ने आपके सामने रिएक्ट किया है, 0.935 ने रिएक्ट किया है. ओके, सो आपके पास इसके मोल्स ओरिजिनल हैं कितने, 1.35. सो इफ़ एनी वन ऑफ यू इज़ गेसिंग अबाउट दिस थिंग, इफ़ वी हैव 1.35 टोटल मोल्स and we are calculating these moles 0.935 which have reacted with ammonium chloride. So simple बात है कि अगर मैं इन दोनों को subtract कर दूँ, which is shown here, if I am just subtracting 1.35 से 0.935 को माइनस कर दूँ, तो मेरे पास वो मोल्स आ जाएंगे जो कि अनरिएक्टेड रह गए. ठीक है, मैंने किया क्या है, मैंने सिंपल ये वाले मोल्स निकाले हैं.
ये वाले मोल्स निकाले जिन्होंने रिएक्शन किया था, और टोटल मोल्स गिवन थे, उनमें से सिंपल इनको माइनस कर दिया, और मेथड आपके सामने मैंने बताया है कि जिसके मोल्स निकालने होंगे उसको राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया। द आंसर इज़ 0.415। ठीक है, दिस इज़ द आंसर, that's 0.415. Okay, now what we are going to do, because they are asking us in the question how many grams of calcium hydroxide, how many grams of calcium hydroxide are, so what does it mean? We are going to find the mass for calcium hydroxide. So calcium hydroxide का मास हम उन मोल से मालूम करेंगे जो कि मोल्स हमारे पास हमने कैलकुलेट किए हैं फॉर एक्सिस reactant 0.415 simple, 74 is the atomic molar mass of calcium hydroxide, and that's the answer, simple. ठीक है, so these are the few steps involved for the एक्सिस reactant calculation whenever it is asked. आपको limiting reactant, अच्छा यहाँ पर बिकॉज ये क्वेश्चन जल्दी इसलिए हो गया बिकॉज मोल्स वर गिवन, अगर नहीं होते तो फिर डेफिनेटली हम लोग सारा कैलकुलेशन करते हुए चलते हैं, हम लोग पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालते हैं, हमारा आंसर अमोनियम क्लोराइड होता है ऑब्वियसली, फिर हम आते हैं एक्सिस की तरफ, बट यहाँ हमें मिड ऑफ द पार्ट्स न्यूमेरिकल दिया गया था, तो दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट कर दिया है. नाउ कम्स द मेन पार्ट, इट्स अ थ्योरेटिकल यील्ड. सबसे पहले तो द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ theoretical yield and what is actual yield or practical yield also. In a simple word, for example, अगर आपसे कहा जाए कि खाना बनाना है, खाना for example you want to cook something, और खाना बनाने के लिए हमें अंदाज़न, I mean we are not perfect chef, so हमें अंदाज़न 20 persons के लिए खाना बनाना है, तो हमें इतनी इतनी अमाउंट की चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी. बट समटाइम्स क्या होता है कि सपोज़ करो कि आपने सोचा तो ऐसे था कि 20 लोग चलो ज़्यादा हो गए तो हम लोग कम कर लेते हैं लोग. चलें थोड़ी इजी एग्जांपल लेते हैं, हम चाय की एग्जांपल ले लेते हैं या कॉफ़ी की एग्जांपल ले लेते हैं, बिकॉज दिस इज़ द थिंग विच जिससे स्टूडेंट्स ज़्यादातर नॉर्मली फेमिलियर होते हैं. आपने 3 कप चाय बनानी थी और आपको उसके लिए ज़ाहिर चाहिए क्या क्या, टी चाहिए, मिल्क चाहिए, शुगर चाहिए, ठीक है, और वाटर चाहिए. सो आपने क्या किया, आपने कहा कि यार मैं इसके अंदर 1 कप ऑफ मिल्क डाल दूँ वो फॉर 1 कप एंड 2 कप्स ऑफ वाटर 3 कप्स बना देगा. बट हुआ क्या कि आपने 2 कप्स जो हैं वो उसको पानी बॉयल किया और आप भूल गए, ठीक है, और पानी आपके पास है नहीं. तो क्या हुआ, आपने अंदाज़ा लगाया था जो कि 2 कप्स ऑफ वाटर एंड 1 कप ऑफ मिल्क इज़ सफिशेंट फॉर द 3 कप्स ऑफ टी. सो क्या हुआ, पानी आप रख के भूल गए और पानी जो है वो बॉयल हो गया, सूख गया. फॉर एग्जांपल 1 कप का पानी सूख गया, तो पीछे कितने बचे आपके पास, 2 कप्स. सो ये जो आपने अंदाज़ा लगाया था, जो आपने सोचा था कि 3 कप्स आर, आई एम गोइंग टू मेक 3 कप्स ऑफ टी लाइक दिस, दैट वॉज योर थ्योरेटिकल यील्ड. ठीक है, दैट वॉज योर थ्योरेटिकल यील्ड. एंड इन एक्चुअल प्रैक्टिस दोज 2 कप्स विच यू फॉर्म बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द रीज़न, आप भूल गए, आपको कोई काम पड़ गया, लाइक पानी है 2 कप्स का, वाटर कितनी देर लगाएगा बॉयल होने में, हार्डली 5 मिनट्स और मैक्सिमम 10 मिनट्स. सो वो क्या हुआ, वो एक्चुअल यील्ड है आपकी, सही है. सो थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है, जो एक सपोज्ड वैल्यू होती है, एक ऐसे डेटा कैलकुलेशन होती है जो एक्चुअल में नहीं हुआ होता, वो हमारी सपोजिशन के ऊपर चल रहा होता है, दैट इज़ थ्योरेटिकल यील्ड. नाउ कम्स the part the main part which is written here, the quantity of product calculated from a balanced chemical equation is called theoretical yield. This is the definition, and theoretical yield can be easily understood by considering that it is just a prediction. This is the important word, prediction of how much product is estimated to be produced. As I gave you the example of tea, that's a perfect example. आप इससे इसको याद रखिए. And this helps scientists to consider different parameters for the possible outcomes. And this is not always true कि पानी सूख जाएगा और चाय कम बनेगी, बट एक आपको आइडिया हो जाता है कि हमारे पास theoretical yield का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, कि इतना होना चाहिए. Now comes the actual yield, but majority of the reactions, especially organic reactions, now come in the chemistry terms. Normally what happens that we assume and we just suppose कि this is going to be the formation of this product, we want to make any product and this is the reactant and this is the reactant and they are going to react and they are going to form this product. This is our supposition, but in actual practice हमेशा 100% of the product is not formed, सही है. So the product, if the product is not forming 100%, so what does it mean? It means कि in actual practice there are some another factors involved which are not allowing
that reaction to complete itself into 100% product fine to form the product. Okay, so the result is in a less yield the product as compared to what was calculated as a theoretical yield. This is referred as actual yield, and as the definition is describing that actual yield is in actual practice it is minimum in quantity. Now comes the formula part. This is the percentage yield, actual yield divided with theoretical yield multiply by 100. This is the formula, ये आपको याद रखना है. नाउ कम्स द एग्जाम्पल पार्ट. ये एग्जाम्पल जो है ना नॉर्मली जब हमारी क्लासेस हुआ करती थी होती थी, इंशाल्लाह आगे भी होंगी, जब जो आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं, फ़िज़िकल क्लासेस जिसको कहते हैं, उसके अंदर हम लोग क्या करते थे कि मैं ये कभी भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स को सॉल्व नहीं कराती थी. आई ऑलवेज़ लेट देम डू. ठीक है. सो बट अभी ये है कि आई एम गोइंग टू मेक यू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन, लेकिन ये है कि आई विल गाइड यू अ बिट ऑफ दिस कि हमने करना कैसे है, बट आई एम श्योर कि यू कैन प्रैक्टिस इट बाय योर सेल्फ ऑल्सो. नाउ कम्स द क्वेश्चन. दिस इज द क्वेश्चन. C6H12O6, एज वी ऑल नो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज और फ्रक्टोज. दे आर गोइंग टू फॉर्म इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक्चुअली. नाउ कम्स theoretical yield. What they are asking? They are asking for theoretical yield of ethanol from 10 gram of glucose. They are giving you the mass in gram of this, and they are asking you theoretical yield of this. Fine. And in the second part they are saying if 10 grams of glucose produces 0.664 grams of ethanol, calculate the percentage yield. So in this question how सबसे पहले तो how it is different from the limiting reactant part. There in the limiting reactant part there must be two reactants involved, बट इन थ्योरेटिकल यील्ड और प्रैक्टिकल यील्ड, ये जो आपके पास क्वेश्चंस हैं परसेंटेज यील्ड वाले, हेयर इज़ जस्ट वन रिएक्टेंट. फाइन. सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस in these two, practical theoretical yield, percentage yield and limiting reactant part. Okay. Now come the solution. Again the solution, as I have told you before, that हमेशा the numerical part is started from the data given. ठीक है. So if you see this data, theoretical yield उन्होंने आपको दी हुई है. theoretical yield of ethanol from 10 grams of glucose, वो आपको कह रहे हैं कि ओके इसको अगर हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो ये क्या, यहाँ से क्या होगा, हमने करना क्या है, ए पार्ट से स्टार्ट करेंगे. थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ इथेनॉल फ्रॉम ग्लूकोज कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग मोल रेशोज़. एंड हाउ वी आर गोइंग टू फॉर्म द मोल रेशो. हम लोगों ने सबसे पहले तो ओबियसली डेटा बनाना है. डेटा के लिए हमें क्या क्या गिवन है, मास इन ग्राम ऑफ ग्लूकोज गिवन है एंड प्रोड्यूसेस मास इन ग्राम ऑफ इथेनॉल गिवन है. व्हाट यू विल डू, यू विल सिंपली कैलकुलेट मोल्स. Firstly this one, this is the moles of 180 is the molar mass of glucose. We will just divide this 10 with 180. ठीक है. सो द आंसर इज़ 0.055. डू चेक द आंसर कि ये कैलकुलेशन सही है, बिकॉज समटाइम्स कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है, बट ओबियसली ये सही है, लेकिन मैं आपसे वैसे ही कह रही हूँ कि आपने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है. ओके. सो नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू कैलकुलेट एक्चुअली, आपने इसके मोल्स तो मालूम कर लिए. व्हाट वाज योर ये आपका रिएक्टेंट था, आपने इसके मोल्स मालूम कर लिए. नाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई द मोल रेशो ऑफ glucose with ethanol. Why we are not applying with carbon dioxide? Because they are in the question they are asking about ethanol. They are not asking about carbon dioxide. If they would ask you, so definitely you are going to apply the mole ratio between glucose and carbon dioxide. So question से ही समझ में आ रहा होता है कि actually करना क्या है, pick किसको करना है. अच्छा, as per equation 1 mole of glucose reacts with 2 moles of ethanol. 1 mole of glucose reacts with 2 moles of ethanol. So the moles which we have calculated, we will simply calculate the moles of ethanol in that. And we are familiar with this thing कि हम लोग किस तरह कैलकुलेट करते हैं. ये हमारे पास मोल्स आ गए 0.111 moles of ethanol. Now this मास ऑफ इथेनॉल जो कि आपको कैलकुलेट करना है, एंड मास क्या है, दिस इज़ द मोलर मास. ये मास पूरा लिखा नहीं हुआ, बट दिस इज़ द मोलर मास. सिंपल मास ऑफ इथेनॉल आपने मालूम करना है किस तरह से, यहाँ पर ये मोलर मास है आपके पास. ठीक है जी. अच्छा, मास ऑफ इथेनॉल मालूम करना है. 0.111 मोल्स जो आपने किए थे उसको 46 से मोलर मास ऑफ इथेनॉल से आपने मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5.111 ग्राम्स. नाउ दिस इज़ द मास ऑफ इथेनॉल एज थ्योरेटिकल यील्ड. दिस इज़ व्हाट थ्योरेटिकल यील्ड वी हैव कैलकुलेटेड. नाउ पुट इन द फार्मूला. हमारे पास ये है फॉर परसेंटेज यील्ड, इट इज़ एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100. एंड इसको हमने
यहाँ से ये कहाँ से आया, ये 0.664 ये हमें गिवन था। तो एक्चुअल यील्ड आपको गिवन थी, थ्योरेटिकल यील्ड आपने मालूम कर ली। और जो हम लोग नॉर्मली जो इस तरह से कैलकुलेशन से मालूम करते हैं ना कि हमें बता रहे होते हैं, ये आपको थ्योरेटिकल यील्ड दे रहे होते हैं, ठीक है। सो द आंसर एंड जस्ट मल्टीप्लाइड विथ 12.9%, सो आपका आंसर आएगा, ठीक है। स्टेप्स वही हैं, फर्स्ट इज़ मोल्स कैलकुलेशन, सेकेंड इज़ द मोल रेशो, मोल कैलकुलेशन ऑफ द रिएक्टेंट, मोल रेशो you are going to apply for the product they are asking for. It doesn't matter how many products we have, we may be having 3 products 4 products, सब सही है, सब हो सकता है, बट क्या है कि हमें इसको वो नहीं करना, मिक्स नहीं करना, हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कोई, ठीक है जी। सो नेक्स्ट कम्स द एक्सरसाइज पार्ट, डू सॉल्व इट। एंड मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ आप लोगों के साथ, इसको पहले मैं जूम कर लूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसकी पिक्चर जो है वो उनको प्रॉब्लम होती है, तो आप लोगों को क्वेश्चन आप समझ नज़र आ जाएँ। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल यील्ड, होप यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। वाई एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, गिव रीज़न देंगे आप। एंड सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम साइंस टिडबिट्स, इट्स not tid, it's tidbits, fine, okay, of the chapter from textbooks, and find the balanced chemical equation shown below। balanced chemical equation आपके पास ये है, this is the arrow, ये नहीं आएगा, arrow आपके पास यहाँ आएगा, मैं लगा देती हूँ, ये है arrow आपके पास यहाँ पर, ठीक है जी। okay, the question is C6H6O3 plus 6O2 goes to form 6 carbon dioxide plus water if the reaction of 40.8 grams of this is given, of C6 produces a 39.0% yield, how many grams of water would be produced। so ये आपको ये दे रहे हैं, आपको ये दे रहे हैं, और ये दोनों चीज़ों का आपने कुछ नहीं करना, मतलब you are going to find moles for this, you are going to apply mole ratio for this, and then after you are going to find the mass and percentage yield के लिए जो कैलकुलेशन करनी है वो करेंगे आप, फाइन। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। I will in the next class inshallah we will discuss about exercise, and I'm giving you how many days you will be having, you will be having 3 days, I guess, no, 2 days at least. So I will suggest that do practice your exercise, because exercise is kind of now exercise is a kind of your test. I'm going to ask you questions randomly to everyone, MCQs part भी और questions के numericals भी at that time, ठीक है। so ये एक टेस्ट की तरह होगा आपका, तो आप एक्सरसाइज को सॉल्व करके रखिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट के क्वेश्चंस वहीं से मैं पूछूंगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, गुड लक, अल्लाह हाफ़िज़।